Welcome everybody. This is our class 10 chapter light series where I have completed approximately 10 classes till now in this series, and today we are going to study further regarding lenses. Till now we have discussed regarding lenses, that how to construct a lens, how to differentiate between lenses, and how to do image formation using concave and convex lens systems. We have covered this all. Today we will go ahead, and as usual I will ask you to share my this video, subscribe to my channel if it is helpful to you anyhow, because more you share, more you subscribe, the more encouragement we get to make such videos, more motivated we feel to make such videos. So please like, share, and comment. And if you have any doubts, you can ask in comment section. I will try to resolve them as soon as possible. Moving ahead, let's start with today's topic. Today we will start with sign convention for our lens system. For that, we will take one of our previous diagram of lens system, and we will explain that what are the variables and how they will be taken, and what will be positive and what will be negative using lens formula, because basic sign convention we have discussed already. Today we will do this using including lens formula, that what will be u, what will be v, where it is positive and negative. We will cover all those cases in good detail. So let's start. Our today's topic is, our starting topic is lens formula. Before this we have discussed mirror formula, and mirror formula was 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. Here v was image distance, u was object distance, and f was focal length. And how we remember that, when we studied equation of motion, in equation of motion v was equal to u plus at. V was final velocity, u was initial velocity, so u was starting thing. Similarly, we can draw analogy here that u is a starting thing, means object, related to object, and v related to final, means image. So v is related to image, u is related to object, and f is focal length. Now for lens system, for lens there is slight change in this formula, and for lens our formula is this 1 by v. Here it comes as negative and rest is same. Just u converts into negative form, and rest formula whole thing is same. And again here v is distance of image from optical center or pole. Of lens.
u is distance of object from optical center. So, and our remaining thing is f. F is focal length of the system. अभी हम आपको एक बेसिक डायग्राम प्लॉट करके दिखाएंगे जहां पे आपको u v और ये सभी हम आपको दिखाएंगे कि कहां पे क्या होता है, जैसे हमने मिरर के केस में किया था। तो हम ऊपर से अपना मिरर सिस्टम को कॉपी करते हैं, जो मिरर सिस्टम हमने पहले यूज किया है सारी स्टडीज करने के लिए। तो सपोज कीजिए हमारे पास ये मिरर सिस्टम है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज बनती है यहाँ पे, बिकॉज ये 2f से साइड है तो इसकी इमेज अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बनेगी। हम जस्ट ऑब्जर्वेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन के बेसिस के लिए हम ये सब कर रहे हैं। मीन्स आप ये मेजरमेंट के लिए नहीं, हम जस्ट आपको बेसिक्स समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा एक ऑप्टिकल सेंटर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको तो बोला जाएगा u, और जो इमेज है और इसका और ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस है दैट इज विल बी कॉल्ड एज v। सो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v, और हमारी फोकल लेंथ या तो OF1 के इक्वल होगी या OF2 के इक्वल होगी, दोनों ही फोकल लेंथ होंगी। आप कोई भी फोकल लेंथ ले सकते हो। आफ्टर दैट जो हमारी ये है, दिस विल बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज हाइट ऑफ इमेज। और हम आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो लेफ्ट साइड होगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, जो राइट साइड होगी इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो डिस्टेंसेस हैं तो यहाँ पे u नेगेटिव होगा, v पॉजिटिव होगा, hi है ये नेगेटिव होगा बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, और ho पॉजिटिव होगा बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। तो ये होंगे हमारे बेसिक डिस्टेंस मेजरमेंट्स। और इसी फॉर्मूला में हमारे पास एक और टर्म आती है जो हमने लेंस सिस्टम जब हमने मिरर किया था तब हमने की थी, दैट वाज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस केस में लेंस के केस में ये होता है v बाय u। पहले वाले केस में था ये -v बाय u, बिकॉज यहाँ पे u है जो नेगेटिव हो जाता है, तो वो नेगेटिव यहाँ पे एडजस्ट होकर के जो यहाँ पे पहले वाला नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बना देता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है v बाय u। तो इतना सा डिफरेंस है कि जो मिरर है, मिरर के लिए यही फॉर्मूला था -v बाय u, लेंस के लिए माइनस साइन नहीं रहता। तो अभी हम ऊपर जो हमने सभी केसेस डिस्कस किए हैं वहां पे जाके हम आपको सभी बताएंगे कि कहाँ पे u पॉजिटिव है, कहाँ पे u नेगेटिव है, v और न्यू, और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
और साथ में फोकल लेंथ कहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है। जैसे हमने मिरर के केस में सभी वेरिएबल्स के लिए किया था, वहां यहाँ भी हम सभी वेरिएबल्स के लिए ऐसा करेंगे। हमारे पास 2 एग्जाम्पल कॉनकेव के हैं और अराउंड 5 एग्जाम्पल कॉन्वेक्स लेंस के हैं। सो हम सभी करने जा रहे हैं। फर्स्ट इज आवर U, सेकंड इज V, U, V, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं सो दैट सभी के लिए हम इसको कर पाए। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड को आप नेगेटिव मानोगे, राइट साइड को आप पॉजिटिव मानोगे। अब जो U है, U इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो इमेज यहाँ पे बनती है और ये राइट साइड में है, तो U हो जाता है पॉजिटिव। U इज पॉजिटिव, सॉरी हमने गलत कर दिया। U is distance of object because U is initial, object starting में आता है, तो U is distance of object और जो object है वो इन्फानाइट पे है और लेफ्ट साइड में है, तो जो U होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। जो V है that is image distance from pole of axis, या आप बोल सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और वो राइट डायरेक्शन में आता है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके लिए फोकल लेंथ देखिए, जहां से लाइट गिरती है, जिस डायरेक्शन से लाइट गिरती है, आपको वो कर्वेचर वाली फोकल लेंथ लेनी है। जो ये साइड है इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे लाई करती है, तो ये भी राइट साइड में लाई कर रही है तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे इमेज वर्टिकली इनवर्ड होती है, उल्टी इमेज बनती है क्योंकि रियल इमेज बन रही है, तो वो नीचे की तरफ बनेगी तो वो नेगेटिव रहेगी। और ऑब्जेक्ट है जो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सीधा होता है और इनफाइनाइट पे होता है तो पॉजिटिव रहेगा। आगे चलते हैं, सेकंड सिस्टम के लिए करते हैं यही एनालिसिस। यहाँ पे फिर से जो लेफ्ट है, लेफ्ट को नेगेटिव, राइट को पॉजिटिव लेंगे। U इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, उसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा और ये नेगेटिव होगा। इमेज राइट साइड में बन रही है तो पॉजिटिव। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है, तो जो इसकी जहाँ पे लाइट गिर रही है इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे आती है, सो पॉजिटिव। इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है सो पॉजिटिव। लास्ट वाले पे आते हैं। यहाँ पे फिर से ये साइड नेगेटिव होगी, ये साइड पॉजिटिव होगी। U ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और वो लेफ्ट में है, सो नेगेटिव। इमेज राइट साइड बन रही है तो पॉजिटिव। फोकल लेंथ भी राइट साइड होती है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, सो पॉजिटिव। इमेज नीचे बन रही है सो नेगेटिव, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है सो पॉजिटिव। नीचे जाते हैं, डी के लिए करते हैं सेम एनालिसिस। लेफ्ट साइड को नेगेटिव माना जाता है, राइट साइड को पॉजिटिव माना जाता है। ऑब्जेक्ट फिर से लेफ्ट में ही है तो U इज नेगेटिव, इमेज राइट में है तो V इज पॉजिटिव। इसकी फोकल लेंथ फिर से पॉजिटिव होगी।
इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है सो नेगेटिव, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है सो पॉजिटिव। फिफ्थ केस में देखते हैं। फिफ्थ केस के लिए ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड में है, लेंसेज के लेफ्ट साइड को नेगेटिव बोलते हैं और राइट साइड को पॉजिटिव माना जाता है। सो U हो जाएगा नेगेटिव, V हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इमेज कहाँ पे बन रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बन रही है, तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा, बट होगा राइट साइड में, सो पॉजिटिव। फोकल लेंथ फिर इसकी एज इट इज रहेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। नाउ गोइंग टू हाइट ऑफ इमेज। जो इमेज है वो इनफाइनाइट साइज की बनती है और रियल बनती है, तो इन्वर्टेड होगी, सो नेगेटिव। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, सो पॉजिटिव। हमारे पास लास्ट रह गया, ये लास्ट करते हैं। लेट मी मूव दिस। तो जो हमारा लास्ट एग्जांपल है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, सो दिस इज नेगेटिव साइड अगेन, दिस इज पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, मींस नेगेटिव साइड में है, तो यूज नेगेटिव। यहाँ पे इमेज भी लेफ्ट साइड में बन रही है, मींस V भी नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ राइट साइड में ही रहेगी, तो पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, सो पॉजिटिव। सो ओनली दिस केस, जो लास्ट हमारा केस है, इसके अंदर डिफरेंस आता है। इसके अलावा जो हमारे ऊपर के सभी हमने केसेस डिस्कस किए, सभी में सेम सिनेरियो रहता है, जहां पे U नेगेटिव होता है, V पॉजिटिव होता है, F पॉजिटिव होता है, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होती है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होती है। अब हम कॉनकेव लेंस के लिए जो हमारे दो केसेस हैं वहां भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमारा पहला केस है। इस केस में जो लेफ्ट साइड है दैट इज अगेन नेगेटिव, राइट साइड इज अगेन पॉजिटिव। सो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बट लेफ्ट में है, मींस नेगेटिव। इमेज इमेजिनरी है, वर्चुअल है, बट लेफ्ट में बन रही है, फोकस पे बन रही है, सो नेगेटिव। इसकी फोकल लेंथ अगर आप इस कर्वेचर को देखोगे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड आता है, तो फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड आती है, सो नेगेटिव। जो कनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है उनकी फोकल लेंथ एक दूसरे के अपोजिट होती है साइन में। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है। हाइट ऑफ इमेज, जो इमेज है यहाँ पे वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज स्ट्रेट बनती है, सो पॉजिटिव प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इनफाइनाइट पे है, सो पॉजिटिव। ये हमारा लास्ट केस है। यहाँ पे लेफ्ट साइड नेगेटिव साइड, राइट साइड पॉजिटिव साइड। तो U हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, सो नेगेटिव। V इमेज का डिस्टेंस है और इमेज यहाँ पे हमने ये रेड कलर से बनाई हुई है और ये भी लेफ्ट में ही है, सो अगेन नेगेटिव। फोकल लेंथ इसके लिए नेगेटिव ही होती है। हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी हुई इमेज, सो पॉजिटिव है और ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, सो पॉजिटिव है। सो ये हमारी बेसिक साइन कन्वेंशन हो गई इन सभी सिनेरियो के लिए। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हुए
आपको कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करके दिखाएंगे सो दैट आपको बेसिक आइडिया हो सके कि कैसे इस फॉर्मूला का यूज करना है। और उसके बाद जब हम प्रॉपर अपनी न्यूमेरिकल सीरीज करेंगे, क्वेश्चन सीरीज करेंगे, वहां पे हम मोर देन एनफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके इसके रिगार्डिंग। So our first question is shown in screen. एक कॉनकेव लेंस गिवन है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है? दिखने में ऐसा होता है। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? इस साइड लाई करती है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, सो -15 सेंटीमीटर इज फोकल लेंथ। अब पूछा गया है एट व्हाट डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको बताना है, मतलब कि आपको यू कैलकुलेट करना है, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रही है, तो v इज 10 सेंटीमीटर। वह भी आपको पता नहीं कि v पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, तो इस सिनेरियो में आप क्या करोगे कि इसको सोल्व करने के लिए आपको इमेज फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस में इमेज ऑलवेज वर्चुअल होती है एंड कहां पे बनती है? ऑलवेज लेफ्ट साइड में बनती है। हमने ऊपर जो दो केस किए थे, दोनों में हमने आपको दिखाया था कि कैसे वर्चुअल एंड लेफ्ट साइड में ऑलवेज बनती है। और ये पहला केस है जहां पे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, इमेज फोकस पे बन रही थी बट लेफ्ट में ही बन रही थी, तो v भी नेगेटिव था, u भी नेगेटिव था। और ये दूसरा एनीवेयर केस था कि आप उसके बाद कहीं और रख दोगे तो भी वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगी, सो लेफ्ट में ही बनेगी, मींस नेगेटिव ही होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो v है वो भी नेगेटिव ही होगा। तो अभी आप क्या कर सकते हो? अब आप सिंपली फॉर्मूला लगाओगे दैट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और आपको ध्यान रखना है कि लेंस के केस में यहाँ पे नेगेटिव आता है। सो जब आप वैल्यू उसको पुट करते हो तो u की वैल्यू आपके पास नहीं है बट v की वैल्यू है, सो इट इज -1/10 -1/u इंटू -15। आप इसको फर्दर सोल्व करोगे, आपको मिलेगा -1/u इज इक्वल टू -15, और ये इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, सो 1/10। एलसीएम लोगे आप, एलसीएम 30 आएगा, -2 + 3 इज इक्वल टू 1/30, और ये -1/u के इक्वल है। और यहाँ से u आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? मीन्स जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज इन लेफ्ट साइड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। और अगर आप यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालना चाहो, अगर आप मैग्निफिकेशन निकालना चाहो तो इसके लिए मैग्निफिकेशन होता है v/u। तो यहाँ पे जो हमारा v था वो नेगेटिव था, और नेगेटिव कितना नेगेटिव था? -10। सो -10, और जो u हमने निकाला है दैट इज -30, सो मैग्निफिकेशन आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, और साथ में एक और पॉइंट हम आपको फिर से रिमेंबर करवा देते हैं दैट हमने मैग्निफिकेशन के केसेस डिस्कस किए थे कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग होता है जो इमेज है इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमने मिरर के केस में स्टडी किया था कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने का मीनिंग है इमेज रियल है और इन्वर्टेड है,
और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे गिवन है ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा ही पॉजिटिव होती है। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस दिखने में ऐसा दिखता है और इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे लाई करती है राइट साइड में, सो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, सो एफ विल बी पॉजिटिव। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। अब जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑलवेज लेफ्ट साइड रखा जाता है तो डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहता है। सो यू इज -15 सेंटीमीटर। अब आपको नेचर, पोजीशन, साइज सब बताना है और मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करना है। तो पहले हम वी कैलकुलेट करते हैं, किसका यूज करके, लेंस फॉर्मूला का। सो दिस इज लेंस फॉर्मूला। आप वैल्यूज पुट करोगे और आप यहां से सीधा लिख सकते हो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/f होगा 1/10 और u नेगेटिव है सो -1/15। एलसीएम अगेन 30, 3 - 2 1/30। तो आप यहां से निकाल सकते हो दैट 1/v की वैल्यू आएगी 1/30, इम्प्लाइज जो v होगा आपका 30 सेंटीमीटर होगा। v पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स जो इमेज है, इमेज इज इन राइट साइड। ऑफ लेंस। अब जब भी राइट साइड में लेंस की इमेज बनती है तो वो क्या होती है आपको पता होना चाहिए। अगर आपने हमारे जो ऊपर की वीडियो है, पिछली लास्ट वीडियो, उसमें देखा हो कि राइट साइड में इमेज तभी बनती है जब वो क्या होती है, रियल हो एंड इन्वर्टेड हो। और अगर हम यही आगे प्रूव कर देंगे कि वो दोनों रियल है और इन्वर्टेड है, और वो कैसे होगा कि मैग्निफिकेशन होगा जो नेगेटिव आएगा। सो अब हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं। जो मैग्निफिकेशन होता है लेंस के लिए दैट इज v/u होता है। v इज 30 और u हमारा है -15। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -2 और नेगेटिव मैग्निफिकेशन मीन्स इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। और यही इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो -2 इज इक्वल टू, इमेज की हाइट हमें नहीं पता बट ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। आप यहां से हाइट ऑफ इमेज निकालोगे दैट इज -4 सेंटीमीटर। सो दिस इज आवर आंसर। हमने मैग्निफिकेशन निकाल लिया, इमेज का टाइप निकाल लिया और इमेज की हाइट कैलकुलेट कर ली। तो ये बेसिक 2 न्यूमेरिकल्स थे। इसके अलावा हम डिटेल में फर्दर बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, वो हमारे आगे जब हम प्रॉपरली ओनली न्यूमेरिकल्स पे वर्क करेंगे इस चैप्टर के, जो कि इस वीडियो के बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो हम वहां पे करेंगे। अभी इसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है दैट इज पावर ऑफ लेंस। तो हम अभी वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो पावर ऑफ लेंस को डिफाइन किया जाता है द एबिलिटी of the lens system to converge or diverge a light beam or light ray। कोई लेंस कितनी मीन्स आप बोल सकते कितना स्ट्रोंगली किसी लाइट को बेंड करता है या डाइवर्ज करता है। जैसे जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, बेंड करता है। और जो हमारे पास कनकेव लेंस होता है ये वाला, ये लाइट को डाइवर्ज करता है। तो इनके ये कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो पावर है उसको बोला जाता है, या कैपेसिटी है उसको बोला जाता है पावर ऑफ लेंस। इसके लिए जो सिंबल होता है दैट इज पी।
और ये P इक्वल होता है 1 बाय फोकल लेंथ, और जो इसकी यूनिट होती है दैट इज डायोप्टर, और ये होती है मीटर इनवर्स में, बिकॉज फोकल लेंथ मीटर में मापी जाती है, तो आप 1 बाय मीटर करोगे तो ये मीटर इनवर्स आएगा। और जो पावर है हमारे पास, जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो भी पॉजिटिव मानी जाएगी। और जो कॉनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ राइट लेफ्ट साइड होती है तो नेगेटिव होती है, तो इसकी पावर भी नेगेटिव मानी जाएगी। सो अगर सपोज कीजिए आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, हम इसको मीटर में लेते हैं सो दैट हमारी कैलकुलेशन में डिफिकल्टी ना आए। 5 मीटर है तो इसकी पावर हो जाएगी 1 बाय 5 और 0.2 डायोप्टर। अगर कॉनकेव लेंस है सेम का, कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है फोकल लेंथ, तो उसकी पावर आ जाएगी, ये हम मीटर में ले रहे हैं, -1 बाय 5 और -2 डायोप्टर। अभी एडिशन ऑफ पावर, अगर आप दो लेंसेज को आपस में ऐड कर देते हो तो उनकी पावर क्या होगी, पावर कॉम्बिनेशन की हो जाएगी P1 प्लस P2 अप टू कितने लेंसेज को आपने ऐड किया। जैसे अगर आप इन्हीं दो लेंसेज को ऐड कर दो, ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस था जिसकी फोकल लेंथ थी 5 मीटर, दूसरा कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ -5 मीटर है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो इस केस में हमारी जो फोकल लेंथ पावर बनेगी कॉम्बिनेशन की वो होगी 0.2 डायोप्टर माइनस, क्योंकि नेगेटिव है, -2 डायोप्टर दैट इज 0 डायोप्टर। और 0 डायोप्टर किसकी होती है, प्लेन ग्लास, मींस ये लाइट को ना तो कन्वर्ज करता है ना ही डाइवर्ज करता है, जो सिंपल ग्लास स्लैब होती है हमारे पास ये उसकी पावर हो जाती है। तो ऐसे आप लेंसेज को एक दूसरे के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो यूजिंग देयर पावर। और जो हमारे जो पीपल्स को, लोगों को स्पेक्स लगते हैं, चश्मे लगते हैं, उनकी भी पावर्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मैग्नीट्यूड का आपको जो स्पेक है वो लगा हुआ है, तो उसकी भी पावर पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो वहां पे जो पॉजिटिव नेगेटिव होती है वो यही होती है कि अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस लगा है तो उसकी पॉजिटिव पावर होती है और कॉनकेव लेंस लगा हुआ है तो उसकी नेगेटिव पावर होती है। सो इसके साथ ही हमारी इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम इस चैप्टर की न्यूमेरिकल सीरीज और क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें अराउंड हम होप हमारा प्रयास होगा दैट वी विल कवर मोर देन 100 क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस बोर्ड में आए हुए हों और आपको एक बेटर प्रैक्टिस दे पाए, सो दैट जब भी आपको अटेम्प्ट करना पड़े तो आपको क्वेश्चंस नए ना लगे, आपको यूज टू लगे कि आप ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो। सो हम अपने नेक्स्ट वीडियो से उसको स्टार्ट करेंगे। एंड एज यूजुअल अगर आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही है अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, अपने कंसेप्ट्स को और बेटर करने में, then I will ask you to share this video as much as possible, subscribe to my channel and also ask other people to subscribe to this channel, because जितना ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब होगा उतना ही हमारे लिए मोटिवेशन बढ़ेगा दैट कि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहें और आपके सामने लाते रहें। सो प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग and wait for our next video. Till then, thanks for watching.